Hello everyone, welcome to Entire Science. Let's continue our chapter Work and Energy. Now, in the previous video, we have completed mechanical energy and its type that are kinetic and potential. Now, in this video, we will understand what are sources of energy. Sources of energy are characterized into two terms. First, renewable and non-renewable. What are renewable sources? Renewable energy are those energies which are never exhausted with time that can be considered as renewable energy, like sun provided us solar energy, wind that provide wind energy, and other forms of energy which never exhausted with time considered as renewable energy. Non-renewable energies are those which are exhausted after a several usage or several months, that is coal, petroleum, natural gas. These all are the fossil fuels that are under it in the earth in millions of years ago that we are using today. These energies are non-renewable because after some time, in several years or in upcoming time, these energies will be exhausted and we have to explore another sources of energy that we can use without exhausting it. Now, let understand what are renewable and non-renewable energy examples like solar, light, wind, hydro, ocean, bioenergy, nuclear energy. All are considered as renewable, whereas non-renewable energy are coal, chemical, petroleum, and natural gas. So let's understand each of them in detail. First is solar energy. The energy is basically known as solar energy that we get from sun. We receive the solar energy in the form of heat and light. Solar energy mainly used for the purpose that are for drying purpose. Generally जो हम लोग कपड़ों को छत पे सुखाते हैं वो धूप की वजह से इसलिए सूख पाते हैं क्योंकि सन के पास हीट और लाइट दोनों ही होती हैं, और यहां पे प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस ईटेबल्स थिंग्स to get rid the moisture content from the crops of harvesting and all various form of uses that we get as solar energy. Let us understand why solar energy is most important energy for us, because sun is the fundamental or we can say main source of energy on earth by which we get everything. Let us understand by this diagram. अब सन की एनर्जी से हमें काफी चीजें पता चलती हैं, जैसे डायरेक्ट एनर्जी जब हम लोग सन से लेते हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं सोलर पैनल्स के थ्रू, कुकर्स, सोलर हीटर्स एक्सेट्रा, जो सन की डायरेक्टली एनर्जी को यूज कर सकते हैं। वेयर एज जो नेचुरल यूज कर सकते हैं चीजों को, सन की एनर्जी को, दे आर प्लांट्स। अब प्लांट्स से एनिमल्स उसको ईट अप करते हैं प्लांट्स को, और वो अपनी एनर्जी प्लांट्स के थ्रू गेट करते हैं। अब प्लांट्स के थ्रू का जो वेस्टेज होता है डेट आर नोन एज बायोगैस, वो हम लोग यूज करते हैं अपने बायोगैस एनर्जी में, जो कि अभी हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे। अब प्लांट्स के थ्रू हम लोगों को एक और चीज मिलती है डेट आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। आफ्टर अ सर्टेन ईयर्स all the fossil fuel that are deposited by the plants and the dead decaying materials will be deposited and it will become fossil fuel. Other usage of plants are as firewood that we use as cooking purpose, and other energies that are on earth is because of sun only, that is wind energy, and other is hydroelectric power. All these things that we generally get from the sun only. अब हमें इससे क्या पता चलता है कि सन एक सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का अर्थ पे। अब दूसरी एनर्जी हमारे पास है दैट इज हीट एनर्जी। अब किसी भी चीज को जलाया जाता है तो वो एक एनर्जी अपने में से प्रोसेस करता है, दैट इज नोन एज हीट एनर्जी, जैसे कोल, ऑयल, वुड, गैस एक्सेट्रा। अब स्टीम प्रोसेसिंग हीट एनर्जी एंड इज कैपेबल टू डू वर्क। अब हीट एनर्जी के वजह से हमें एक फिनोमिना मिलता है जिसको हम लोग स्टीम बोलते हैं। जब भी पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बनता है, और उस भाप को हम लोग एक एनर्जी के टर्म में यूज कर सकते हैं जिससे वर्क किया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक फेमस साइंटिस्ट जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया इन 1765, जो आज भी हमारे पास एक बेसिक मॉडल है इंजन का।
जो थ्योरी ऑफ हीट एनर्जी के टर्म्स पे काम करता है। नेक्स्ट एनर्जी इज लाइट एनर्जी। इससे हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं बिकॉज आसपास हमें कुछ भी दिखता है वो सब हम लोग लाइट एनर्जी के वजह से ही देख पाते हैं। वी कैन नॉट सी एनीथिंग without this using energy, that is light. Light is a form of energy in the presence of which different object become visible. Generally ये इसकी definition हम लोग consider कर सकते हैं। Cannot see anything without the light but we can feel its effect. अब cannot see the energy given out by light but we can feel its effect. अब हम लोग एनर्जी को क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट इसके अफेक्ट जैसे हमने आसपास की कोई भी चीज देखते हैं तो लाइट एनर्जी के थ्रू हमें दिखता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, The energy of a light can be used to emit electrons from a metal surface that are photoelectric effect. अब ये photoelectric effect क्या होता है? अगर मैं एक मेटल के सरफेस पे सनलाइट को एमिट या किसी भी लाइट सोर्स से एमिट कराऊंगा तो वहां पे एक फिनोमिना होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने ऑर्बिट से एमिट हो जाते हैं और दूसरे ऑर्बिट में जब जाते हैं तो वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस करते हैं, जो कि हम लोग 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सिंपल सा इतना याद रखना कि जब भी मेटल के ऊपर लाइट एनर्जी को एमिट यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट होने लगते हैं और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज करते हैं करंट को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स होता है। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी क्या होती है? हमारी बॉडी एक चलता फिरता केमिकल रिएक्टर है जिसके अंदर हमारे खाने से पचने से लेके हमारे विटामिन से प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में बनती हैं वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनती है। अब केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एक रिएक्शन के थ्रू प्रोसेस होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में देखो, एक रॉकेट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, एक्शन करता है और वो रिलीज होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल एनर्जी ओनली। वैक्स को हम लोग जलाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करता है लाइट के फॉर्म में, और बर्निंग ऑफ वैक्स एक क्या है, केमिकल एनर्जी का। तो केमिकल वैक्स एक हमें दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें देता है। अब एनर्जी जो हम लोग पेट्रोल डीजल से कार वगैरह या ट्रक कोई भी व्हीकल को रन कराते हैं वो भी एक केमिकल है। अब केमिकल एनर्जी का यूज डायरेक्टली या तो हीट में किया जा सकता है या दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कर सकते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी एक केमिकल एनर्जी के थ्रू बना होता है। प्लांट्स इज ऑल्सो बिग केमिकल रिएक्टर ऑन अर्थ जिससे सारी चीजें हम लोग गेट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी तब प्रोसेस होती है जब कोई बॉडी क्या करता है, वाइब्रेट। अगर किसी भी चीज को वाइब्रेट कराया जाए तो उसमें से एक एनर्जी प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी जब हमारे ईयर्स तक पहुंचती है और हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है तो उससे हमें उस ऑब्जेक्ट से निकली हुई साउंड एनर्जी फील होती है जिसको हम लोग साउंड बोलते हैं। अब साउंड एनर्जी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग आती है। जैसे अगर मैं ड्रम को प्ले करे कोई तो ड्रम से आवाज जो आएगी वो अलग आएगी, अगर बुगल प्ले किया जाए तो वो अलग आएगी। हेडफोन्स के थ्रू हम लोग इस एनर्जी को क्या करते हैं, कंट्रोल फॉर्म में सुन सकते हैं। तो ये एक साउंड एनर्जी होते हैं जिसका हमें ओवरव्यू गेट करना था। नेक्स्ट एनर्जी क्या होती है, दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी वो होती है जो कि मैग्नेट के थ्रू हमें मिलती है। अब मैग्नेट के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है लाइक दिस, नॉर्थ एंड साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड एक एनर्जी के टर्म्स में हमें मिलती है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट किसी भी आयरन को अट्रैक्ट या दूसरे मैग्नेट को रिपेल करता है, वो एक एनर्जी के थ्रू होता है। तो जनरली अगर मैं बोलूं तो अट्रैक्शन ऑफ आयरन नेल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड मेक देम मूव। तो मैग्नेट के पास वो एनर्जी ही उस नेल को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जनरली इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड टू रन अ फैन और अदर एप्लीकेबल गेट्स एनर्जी फ्रॉम द मैग्नेट ओनली। तो अगर मैं बात करूं फैन या जितने भी अदर अप्लायंसेस होते हैं जिनमें मैग्नेट यूज करते हैं, वो मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से क्या प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर या रन कराने के लिए पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब दो चार्जेस या तो रिपेल करें या अट्रैक्ट करें एक अदर को, उससे वजह से एक एनर्जी का पोसेशन होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अब ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल जिस वजह से कर पा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से होता है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक एनर्जी के टर्म में मिलती है। ये एक बहुत क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। दैट्स वाई हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है कभी भी। इट कैन इजिली कन्वर्टेड इन अदर फॉर्म। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बहुत सारे अप्लायंसेस रन कराते हैं अपने घरों में, लाइक इलेक्ट्रिक फैन, टेबल लैम्प, इलेक्ट्रिक आयरन,
रूम हीटर एक्सेट्रा। इस एनर्जी को स्टोर भी बहुत इजीली किया जा सकता है, लाइक इन बैटरी फॉर्म। तो बैटरीज में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं, और वो एक डीसी सोर्स होता है। और जो हमारे घरों में एनर्जी आती है वो एक एसी सोर्स होती है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट एनर्जी इज न्यूक्लियर एनर्जी। ये थोड़ी सी स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी होती है जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता होता, बिकॉज द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस, जो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज दिस। तो ये जो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, जिसको मैं अगर यूज कर सकूं तो बहुत हाई फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करते हैं, और वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर होता कैसे उसको देखते हैं। यहां पे मैं एक डायग्राम के थ्रू उसको समझाता हूं। ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम है। इसमें कंट्रोल रॉड्स, फ्यूल रॉड्स, इस फ्यूल रॉड के अंदर हम लोग ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, लाइक यूरेनियम। अब यूरेनियम जब रिएक्शन करता है तो उसकी कुछ एटॉमिक एनर्जी चेंज होती है हीट के फॉर्म में, जिससे हम लोग हॉट वाटर को क्या करते हैं, हॉट करते हैं, उससे हीट एनर्जी प्रोसेस होती है, और वो वाटर स्टीम के फॉर्म में चेंज होता है। स्टीम से वो टरबाइन पे जाता है, और टरबाइन से टरबाइन अटैच होता है जनरेटर से, जो हमें कन्वर्ट करके देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी के वजह से हम लोग एक बिना पॉल्यूशन के एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बट ये एक रिस्की होता है, बिकॉज इसका रिएक्टर बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट भी होता है, और रिस्क भी इससे बहुत ज्यादा होता है। इस एनर्जी को हम लोग एटम बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जो कि वॉर वगैरह में डिस्ट्रक्शन होता है। पहला एटम बॉम्ब वर्ल्ड वॉर के टर्म्स में हम लोगों ने देखा था, जब अमेरिका ने नागासाकी पे और हिरोशिमा पे बॉम्ब को गिराया था, तो हमें इससे इसकी डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चला था। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी क्या होती है, विंड आसपास हमारे है, तो अगर वो एक सर्टेन स्पीड से मूव करे तो उस एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने बना सकते हैं उससे। तो विंड एनर्जी इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम एंशिएंट टाइम। द मूविंग लार्ज मासेस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस अ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि जब भी विंड बहुत तेज चलती है तो वो काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करती है, और ये काइनेटिक ऑफ एनर्जी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय अ स्पेशल अरेंजमेंट नोन एज विंड मिल्स। विंड मिल डायग्राम में देखो ऐसे दिखते हैं, और ये वाला जो विंड, दैट इज अ विंड फार्म, ये विंड फार्म है। और द लार्जेस्ट विंड एनर्जी इज लोकेटेड एट द लांबा इन गुजरात। तो हम लोगों ने बहुत बड़ा सा एक विंड फार्म लगा रखा है लांबा में, दैट इज इन गुजरात। नेक्स्ट इज हाइड्रो वाटर एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, अगर वाटर बहुत तेजी से प्रोसेस करे, जैसे कि एयर प्रोसेस करता है, उससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जब हमें मिलती है तो उससे टरबाइन के व्हील्स को रोटेट कराया जा सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जब वो जनरेटर से कनेक्टेड रहेगा। अब इसका डायग्राम के थ्रू उसको समझते हैं। यहाँ पे रिजर्वायर के टर्म्स में डैम्स में वाटर हम लोग स्टोर करते हैं, और वो जब वाटर एक सर्टेन हाइट से नीचे गिराया जाता है तो वो टरबाइंस पे गिरता है। अब वो टरबाइंस पे गिरता है तो टरबाइंस क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और ये टरबाइन हमारे पास जनरेटर से जुड़ा होता है, और जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। और वो मैकेनिकल एनर्जी आ कहां से रही है, दैट इज फ्रॉम द फ्लोइंग ऑफ वाटर। अब जितना ज्यादा तेज वाटर फ्लो करेगा उतना ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इंडिया में जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगाया हुआ है वो भाखड़ा डैम है इन द सतलुज रिवर नियर द बॉर्डर ऑफ बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड में डैम है। जनरली वो सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड में एक सबसे हाईएस्ट डैम्स में भी आता है, और इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो स्टेशन है जहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। नेक्स्ट इज बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या होती है, अब बायो एनर्जी हम लोगों को, मैंने पीछे एक डायग्राम में समझाया कि जो काऊ का वेस्ट होता है, दैट इज काऊ डंग, उसके अंदर एक गैस होती है दैट इज मीथेन, और वो मीथेन हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, बिकॉज मीथेन इज अ यूजफुल गैस, एज वी कैन यूज एज अ गैस, जिससे हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, हीट एनर्जी। इस वजह से हम लोग बायोगैस एनर्जी गेट करते हैं। अब बायोगैस एनर्जी में होता क्या है कि यहाँ पे स्लरी ऑफ डंग एंड वाटर, मतलब कि काऊ डंग और वाटर को मिक्सअप किया जाता है, और उसको एक कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में रख देते हैं। इस कंटेनर में जब फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है, मतलब कि बैक्टीरिया के थ्रू फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है, तो वो
जनरली धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं, और गैस वहां पे रिलीज होती है मीथेन के फॉर्म में। अब फर्मेंटेशन होने के बाद गैस रिलीज होती है, दैट इज मीथेन, और वो हम लोग स्टोर करते हैं अपने यूज के लिए। ये एक सिंपल सा बायोगैस है जिसको मैंने भी अंडरस्टैंड किया बताया। अब इस एनर्जी को हम लोग इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सन जनरली ये एक एनर्जी है, सन के थ्रू हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सन के एनर्जी को, प्लांट्स को खाते हैं काउस, और काउ का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग गेट करते हैं। तो जनरली अगर मैं बोलूं तो ये एनर्जी कहां से हमें स्टोर जो मिल रही है वो सन के थ्रू ही हमें मिल रही है। नाउ नेक्स्ट एनर्जी इज कोल। अब कोल क्या होता है? कोल एक टाइप का फॉसिल फ्यूल होता है जो कि बहुत सालों से डिपॉजिट हो रखा है अर्थ के सरफेस के अंदर। अब उसको जब हम लोग जलाते हैं तो एक हीट एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट के फॉर्म्स में कोल एनर्जी यूज की जा सकती है। मेन टाइप ऑफ कोल क्या होते हैं हमारे पास? एंथ्रेसाइट, बिटमोनेस एंड लिग्नाइट। ये तीनों ही कोल बहुत ज्यादा यूज होते हैं और अलग अलग जगहों पे मिलते भी हैं। इट इज यूज फॉर द डोमेस्टिक फ्यूल, ये डोमेस्टिक फ्यूल में भी बहुत यूज करते हैं लोग खाना बनाने के लिए भी। और मेन इसका जो काम होता है इंडिया में, दैट इज फॉर द थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और एक और फैक्ट, दैट इज इंडिया में सबसे ज्यादा हमें एज अ फॉसिल फ्यूल जो मिलता है वो कोल है। नेक्स्ट एनर्जी इज पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के वजह से हमें पता है क्या होता है, पेट्रोलियम की वजह से हमारे जितने भी व्हीकल से रन करते हैं मोस्टली, तो इट इज अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल फाउंड अंडरनेथ द अर्थ, अर्थ के नीचे मिलता है, जो कि डार्क कलर का थिक ऑयल होता है जिसको हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं। अब इस क्रूड ऑयल को हम लोग रिफाइन करते हैं, बहुत बड़े रिफाइनरीज होते हैं इंडिया में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक रिफाइनरी है, दैट इज रिलायंस रिफाइनरी। टू ऑब्टेन, अब इसको ऑब्टेन किया जाता है, हम लोग डिपॉजिट करते हैं डीप बिलो ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑयल रिग से उसको निकाला जाता है। आफ्टर सर्टेन टाइम उसको एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है जिससे वहां पे हम लोग उसको प्योरीफाई करते हैं, क्रूड ऑयल से अपने पर्पस के लिए ऑयल बनाते हैं, और वो हम लोग यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में। फ्यूल ऑयल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमें पेट्रोलियम से ही मिलती हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस जनरली सीएनजी के टर्म्स में, एलपीजी के टर्म्स में जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, जैसे कि हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गैस होती है वो एक नेचुरल गैस होती है जिसको एलपीजी बोला जाता है। और सीएनजी एक दूसरी टाइप की गैस होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं व्हीकल्स में, जैसे कि ऑटो रिक्शा में यहाँ पे डायग्राम में देखो जो कि सीएनजी के बेस पे चलते हैं। बस ट्रक्स भी, कुछ बसेस भी होते हैं जो कि सीएनजी के टर्म्स में चलते हैं। कार वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं सीएनजी की। इनका यूज करने का रीजन ये है कि ये नॉन पोल्यूशन गैस होती है, क्योंकि ये कोई भी पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करती है, दैट्स व्हाई वी यूज इट। अब नेचुरल गैस फील्ड्स आर फाउंड इन द त्रिपुरा। ये कहां कहां पे हमें मिलती हैं? त्रिपुरा में है, राजस्थान, ऑफशोर ऑफ एरिया मुंबई एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये कुछ जगहों पे हमें यहाँ पे इंडिया में गेट होते हैं जहां से इस गैसेस को हम लोग कलेक्ट करते हैं। अब इन सारे सोर्सेस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? फॉसिल फ्यूल के कुछ एडवांटेज भी हैं बट उससे डिसएडवांटेज भी बहुत क्रिएट होता है। फॉसिल फ्यूल हमारे पास कन्वीनियंट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है जिसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब कि एक सर्टेन टाइम बाद खत्म हो जाएगा। कैन बी कैरिड आउट द प्लेस प्रोडक्शन एंड वेयर एवर नीडेड, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, बट ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। हाइडल पावर क्या होती है? रिन्यूएबल होती है, लो कॉस्ट होता है सेटअप, बट लार्ज प्रोजेक्ट का और एक्सपेंस नीड होता है इसको बनाने के लिए। तो हाइडल पावर के साथ दिक्कत ये है कि बहुत बड़ा एरिया चाहिए और एक सर्टेन टाइप ऑफ हाइट भी चाहिए जहां से वाटर एक रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी को हमें प्रोवाइड कर सके, जिससे हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यूज कर सके। इसके और भी कॉजेज हैं, ये कॉज पोल्यूशन कॉज नहीं करता है। और वेयर हाइड्रो पावर स्टेशन को हम लोग वहीं पे लगा सकते हैं जहां पे रिवर फ्लो, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारा वाटर चाहिए उसको, तो वहीं वहीं पे इसको लगाया जा सकता है जहां पे रिवर है। विंड एनर्जी रिन्यूएबल तो होती है बट इसको हम लोग हर जगह नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जहां पे बहुत ज्यादा हवा का स्पीड होगा वहीं पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। विंड एनर्जी ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन कोई भी क्रिएट नहीं करता है, बट ये बहुत सारा एरिया एक्वायर करता है अपने विंड फार्म को लगाने के लिए। जियोथर्मल एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। अच्छा, जियोथर्मल के बारे में मैंने नहीं समझाया। जियोथर्मल एनर्जी एक बहुत बेसिक सी एनर्जी होती है जो अर्थ के कोर की जो हीट होती है उसको हम लोग यूज करते हैं। नाउ डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल सोर्स है तो कोई भी पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, बट ये सर्टेन जगहों ही पे होता है, इस वजह से हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ये हर जगह पे हमें मिलते नहीं है। जियोथर्मल एनर्जी का एग्जांपल गीजर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग
अर्थ के हीट के वजह से वो बनते हैं। बायोमास एनर्जी रिन्यूएबल होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, बट ज्यादा प्रोड्यूस एनर्जी नहीं कर सकते। कल्टीवेशन ऑफ बायोफ्यूल्स इज कंट्रोवर्शियल। कल्टीवेशन जो बायोफ्यूल का होता है कंट्रोवर्शियल चीज हो गई है, और इसको ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा सारी एनर्जी से क्रिएट नहीं हो पाती। दैट्स द रीजन कि इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी आजकल सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है, बिकॉज सारी कंट्रीज इसको डे बाय डे और मॉडर्न करना चाह रही है, और इसका सेटअप भी बहुत एडवांस करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज एक नॉन पोल्यूशन प्रोसेस है जिससे पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता है एनर्जी को बनाने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रिकल। और इंडिया की डिमांड या अदर कंट्रीज की भी डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को। इस वजह से हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे ज्यादा काम कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर सकता है, और बहुत कम सोर्स ऑफ हमें फ्यूल दैट इज यूरेनियम और थोरियम ऐसी चीजें हमें चाहिए होती हैं, बट इनको हम लोग कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव, इनका जो सेटअप होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक सर्टेन क्राइटेरियाज को पास करना होता है, और एक इंजीनियर्स का पूरा ग्रुप होता है जो यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं वो बहुत एक प्रॉपर लोग होते हैं। नेक्स्ट इज कैन यूज बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। इसको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी को बनाने के लिए और लार्ज स्केल पे यूज कर सकते हैं, बट इसका सबसे डेंजरस ये है कि वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडिएशन इससे बहुत रिलीज होगा, और ये रेडिएशन वेस्ट और रेडिएशन आसपास जो वहां पे लोग काम करेंगे वो रेडिएशन के उसमें रहेंगे। इस वजह से ये कुछ कॉजेस हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के साथ लगे होते हैं। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जितनी भी एनर्जीज होते हैं उनके कुछ एडवांटेज तो होंगे, पर कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, जहां पे मैंने यहाँ पे कुछ को डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ना एनर्जी कभी भी क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं जिसमें एनर्जी का एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, जो प्लांट्स करते हैं। टेबल फैन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी देता है, जो कि हमें जिससे हमें हवा मिलती है। ट्यूबवेल्स ट्यूब्स एंड बल्ब्स जो कि इलेक्ट्रिकल से लाइट एनर्जी बनाते हैं। डोरबेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी का एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल का काम करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो मैकेनिकल। इसी का अपोजिट अगर मैं बोलूं तो जनरेटर होता है। जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है किसी भी मोटर को, तो वो जनरेटर के टर्म्स में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इसी का अपोजिट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ड्राई सेल्स के अंदर हम लोग केमिकल को स्टोर करते हैं और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। हीटर में इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी चेंज होता है। लाउड स्पीकर में भी इलेक्ट्रिकल टू साउंड। माइक्रोफोन जब हम लोग बोलते हैं तो साउंड जो रिलीज होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ में चेंज होती है, और उसको हम लोग एम्पलीफाई करके यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक एनर्जी चेंज होती है। इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट बनाया जाता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एक नेल लो, कील के ऊपर वायर को बाउंड कर दो और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, इसी वजह से कपड़े साफ हो पाते हैं। मिक्सर ग्राइंडर के अंदर मोटर लगी होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल ही करेगा। जनरेटर मैंने जस्ट बताया मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल मोटर का उल्टा बोल सकते हैं। सोलर सेल्स लाइट के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देता है। बर्निंग ऑफ वुड केमिकल टू हीट एनर्जी। विंडमिल क्या करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देते हैं। स्टीम इंजन हीट टू मैकेनिकल एनर्जी, जो हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया, जेम्स वॉट ने इनको डिस्कवर किया था। बायोगैस केमिकल टू हीट एनर्जी। ऑटोमोबाइल इंजन जो हमारे पास इंजन यूज करते हैं हम लोग, उसमें पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल डालते हैं तो वो इंजन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से व्हीकल्स रन करते हैं। कुकिंग गैस एलपीजी जिसको बोला जाता है, जो कि एक नेचुरल गैस होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं, केमिकल टू हीट एनर्जी। टेलीविजन में होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड भी होता है और लाइट एनर्जी भी, क्योंकि हम लोगों को टीवी पे स्क्रीन भी दिखती है और आवाज भी आती है, तो वो दो एनर्जी में चेंज करता है। उसके अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो साइमल्टेनियसली काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल साउंड और लाइट दोनों में कन्वर्ट होती है। कार में केमिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। कार बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करती है एज वेल एज मैकेनिकल, जिसके वजह से वो इंजन रन होता है और व्हीकल चलता है। कैम्फर कैम्फर्स केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब